Morning all of you. How are you doing? I hope everybody is doing well at their places. So in our previous class we discussed mean, right? And how to find the mean using our direct method and assumed mean method. Now today we are going to discuss step deviation method. Which method? Step deviation method. Okay. For explaining this method, I am taking a question, okay? Question number 4 of your exercise, step deviation method, I am just discussing. So, it is question number 4, number of heartbeats per minute. This is given in your question, okay? Per minute, okay? This is given to you 65 to 68. 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute was recorded. Okay, 65 to 68 heartbeat, then we have 68 to 71, then we have 71 to 74, then we have 74 to 77, 77 to 80, then we have 80 to 83, and then we have 83 to 86. Okay, and then we have number of women. It means they are talking about frequency here, number of women. Number of women. This is given to you 2, 4, 3, 8, 7, 4 and 2. 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2. Right? You just need to find the mean. Okay? Mean heartbeat per minute. देखो इसका मतलब मैं जैसे मैंने पहले भी तुम लोगों को बताया था 65 to 68 it means number of heartbeats recorded was 65 to 68 per minute और कितनी औरतों की रिकॉर्ड हुई 2 की. So this is frequency. 68 to 71 less than 71 we will take here. I hope everybody understood. 71 will be included in this class interval. 60 से लेकर 68, 69, 70 है ना 71 हम इस ग्रुप में इंक्लूड नहीं करते, इसमें इंक्लूड करेंगे. तो मीन का फॉर्मूला हमको पता था जब हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया तो वी वर यूजिंग सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi. देन अज्यूम मीन मेथड में हमने डेविएशन निकाला सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi और उसमें a ऐड कर दिया था अज्यूम मीन. इस मेथड में भी हम सबसे पहले क्लास मार्क्स निकालेंगे. क्लास मार्क्स क्या होते हैं? xi से डिनोट करते हैं. जैसे निकालते थे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. अपर लिमिट plus lower limit divided by 2. So 65 plus 68 divided by 2 you will get 66.5. देखो कैसे 65 plus 68 upon 2. This is 133 upon 2 which is 2 6 12 66.5. ऐसे हमने निकाला है. तो ये कैलकुलेशन अब मैं नहीं बता रही हूँ, आप लोग खुद करोगे. 68 plus 71 upon 2 जब आप करोगे you will get what? You will get, just look here, you will take 69.5. You will take 69.5. Then we have 71 plus 74, you will get 72.5. Then we have 75.5. Then we have 78.5. We have 81.5 and then 84.5. अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू हम क्या निकाल रहे हैं. सबसे पहले क्लास मार्क्स कैसे निकालते थे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. 65 प्लस 68 डिवाइडेड बाय 2 आपको मिलेगा 66.5. 68 प्लस 71 डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट 69.5. देन 72.5, 75.5 एंड लाइक दैट, है ना. फिर जब हमने अज्यूम मीन मेथड किया था तो हमने क्या किया था? एक वैल्यू हम a अज्यूम किया करते थे. कोई सी भी वैल्यू वी कैन टेक, है ना. ऐसा नहीं है कि अगर आप a 72.5 लोगे और इफ अदर स्टूडेंट इज टेकिंग 75.5 यू विल गेट डिफरेंट आंसर्स. नो, इफ यू आर टेकिंग a यू कैन टेक a व्हाटएवर यू विश टू टेक, है ना. आपकी कैलकुलेशन ठीक है, यू विल गेट द सेम आंसर. आंसर में कोई वेरिएशन नहीं होगा. अंडरस्टूड. सो इसमें भी हमको a तो अज्यूम करना पड़ेगा. So a which I am taking is 75.5. Suppose I am taking this a. हमारा जो पहले वाला स्टेप था वो चलेगा. अभी हमने क्या किया? di हम कैसे निकालते थे? डेविएशन डिफरेंस ऑफ xi एंड a always. So 66.5
माइनस 75.5। देखो जरा आप क्या करोगे, पहला स्टेप सिर्फ समझा रही हूँ, आगे नहीं, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। सो 66.5, 75.5, दिस आई एम गोइंग टू डू। देन 69.5 minus 75.5, then 72.5 minus 75.5, then 75.5 minus 75.5, then 78.5 minus 75.5, like this. You remember this we have done in assume mean method also, same steps हैं, okay? जो स्टेप हम उसमें करते थे वो अभी भी हम करेंगे. The steps which we were doing, वो same steps we are going to do, right? अब देखो अब क्या करना है, लेकिन सबसे पहले आप सब्ट्रैक्ट करो 75.5 और 66. When you will do, you will get 9. Understood? You will get what? 9. किसका? माइनस का, बड़े का साइन आता है. Understood? Now 69.5 minus 75.5, you will get 69.75. It is going to be 6 minus 6. Now 72, you will get minus 3. Then you will get 0. Then you will get 3. Then you will get 81.5 minus 75.5 is again हमारा कितना आएगा 6. And then 84 and 75, 5 plus 4 9, so you will get 9. है ना, जो पहले स्टेप किया था वो ही हमने किया है, लेकिन अब एक नया स्टेप ऐड हो गया. ओके, सो ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है. आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन एवरीथिंग. देन वी हैव माइनस 3, हमारे पास है 0, ओके क्लास, दिस इज minus 9 and minus 6. ओके, सो डी आई जो हम कैलकुलेट करते थे, कैसे कैलकुलेट करते थे, एक्स आई माइनस ए. आई होप एवरीबडी इज वेरी मच क्लियर. तो फिर इसमें नया क्या है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड. देखो तो जरा, माइनस 9, माइनस 6, माइनस 3, 3, 6, 9, ये सब नंबर 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है. क्लास विड्थ भी 3 है. जब डिविजिबल है तो कैलकुलेशन को और छोटा करने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे. तो जो नया हमारा स्टेप है उसके अंदर हम एक नई वैल्यू निकालेंगे जिसको हम बोलेंगे यू आई. क्या बोलेंगे, यू आई. वो कैसे मिलेगी, जो आपको डी आई मिलता था पहले अज्यूम मीन मेथड में, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, एच से. व्हाट इज एच हियर, यहाँ पे देखो एच विड्थ ऑफ द क्लास, 3 से डिवाइड हो रहे सारे नंबर्स, तो हमने यू आई को किससे, ये कब करते हैं जब कॉमन फैक्टर होता है. भाई तुमको दिख रहा है माइनस 9 भी 3 से डिविजिबल है, माइनस 6 भी, माइनस 3, ये सब 3 के टेबल में आते हैं, यानी सब जब ये आते हैं तो कैलकुलेशन और छोटी करने के लिए वी हैव डिवाइडेड इट विद 3. तो जितनी भी ये वैल्यूज की यू आई हम क्या करेंगे, देखो पहले स्टेप में हमने सबसे पहले मेथड किया था डायरेक्ट मेथड, जिसमें हमने सिर्फ एक्स आई निकाल के सॉल्व किया था, एफ आई एक्स आई. फिर हमारा मेथड है अज्यूम मीन मेथड, जिसमें हमने एक ए वैल्यू अज्यूम की और सब में से सबका डिफरेंस, सारी एक्स आई का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू ए हमने कैलकुलेट किया, जिसको हमने डी आई बोला. अब हम क्या कर रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड, विच इज, आप क्या कर रहे हो कि डी आई में यू हैव अ कॉमन फैक्टर विच इज 3, सो यू आर डिवाइडिंग ऑल द डी आईज, यू आर डिवाइडिंग ऑल द डी आईज विद 3, और उसको हमने नया वेरिएबल नाम दिया है यू आई. सो जस्ट लुक हियर, डी आई डिवाइडेड बाय 3, मतलब एवरी नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 3. माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3 इज माइनस 3. Minus 6 divided by 3 is minus 2. Minus 3 divided by 3 is minus 3. 1. Okay, I'm so sorry. This is minus 1. 0 divided by 3 is 0. 3 divided by 3, 1. I'm not writing, okay. 6 divided by 3 is 2 and 9 divided by 3 is 3. So again, I am getting minus 3 into minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. सबसे पहला था डायरेक्ट मेथड, एफ आई एक्स आई करते थे. फिर आया अज्यूम मीन मेथड, जिसमें हम एफ आई डी आई करते थे. थर्ड जो है हमारा, उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई यू आई, हम प्रोडक्ट निकालेंगे किसका, फ्रीक्वेंसीज का विद यू आई. ओके, फ्रीक्वेंसीज का यूनिट. सो जस्ट लुक हियर, 2 into minus 3 minus 6 फ्रीक्वेंसी है, 4 into minus 2 minus 8. एफ आई यू आई, दिस इज एफ आई, हमने ये यू आई निकाला है. 2 into minus 3 minus 6, 4 into minus 2 minus 8, 3 into minus 1 minus 3, 8 into 0 8, 7 into 1 7, 4 into 2 8, and then 2 into 3 6. क्लियर? सो एफ आई यू आई भी हमको मिल गया. अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो
हमारा सबसे पहले फॉर्मूला था एफ आई एक्स आई, फिर हमारा फॉर्मूले में आया एफ आई डी आई अपॉन एफ आई, अब हमारे फॉर्मूले में आएगा सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एफ आई। हम क्या कर रहे थे, सारे नंबर्स को हमने 3 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पे आके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे 75.5, तो यहाँ आके 75.5 ऐड कर देंगे। सो अब जो हमारा फॉर्मूला होगा, जस्ट लुक हियर, हमारा फॉर्मूला क्या होगा, लुक हियर एंड जस्ट राइटिंग हियर। आपका फॉर्मूला सबसे पहले हुआ सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, फिर हमारा फॉर्मूला हुआ a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब हमारा फॉर्मूला होगा सिग्मा, किसका फॉर्मूला है, एक्स बार का, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। देन हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमने सब नंबर्स को 3 से डिवाइड किया था, लास्ट में आके यू नीड टू मल्टीप्लाई विद 3 which is h क्या है, width of the class, 68 minus 65, 3 का डिफरेंस आ रहा है क्लास इंटरवल्स में, सो h, और हम a सब्ट्रैक्ट कर रहे थे बेटा, what we were doing, we were subtracting a, right, we were subtracting a, तो वो a हम यहाँ आके ऐड कर देंगे, we were subtracting a, so we will add a here। हम डिवाइड कर रहे थे 3 से, यहाँ पे आके जो h था उससे डिवाइड कर रहे थे, हमने यहाँ पे आके h से मल्टीप्लाई किया। ओके, पहला फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई विच वाज डायरेक्ट मेथड, देन a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई होगा, आपने 3 से डिवाइड किया था, यहाँ पे आके उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, यू आर सब्ट्रैक्टिंग 75.5, लास्ट में आके उसको ऐड कर दोगे विच इज a, बस नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला, a इज 75.5। अब हमने सिग्मा एफ आई यू आई नहीं निकाला है, सिग्मा एफ आई यू आई आपको this is sum of frequencies and sum of product of frequencies and ui, fi ui, okay, so just look here, sigma fi ui करें, -6 and +6 कैंसिल, देखो ऐड करोगे आपकी मर्जी है, जैसे भी आप ऐड करते हो, पहले आप सारे नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड कर लीजिए, फिर पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करके लास्ट में सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, -6 and आई एम जस्ट एडिंग, ओके, सो -6 and 6 देखो, I'm just explaining what I'm doing, -6 -8 -3, then we have 7 plus 8 plus 6, ये तो निकालना है सम, देखो +6 -6 -8 + 8, you will get 7 - 3 which is 4, यानी हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या आया, एफ आई यू आई क्या आया, 4 आया, सिग्मा एफ आई यू आई इज व्हाट, 4, तो हम भी वो वैल्यू लिखेंगे 4 अपॉन सिग्मा एफ आई, ये 30 आएगा, they were talking about 30 women, है ना, शुरू में दिया हुआ था हमको कि 30 women, सो सिग्मा एफ आई इज व्हाट 30, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे इनटू h, हम डिवाइड किससे कर रहे थे 3 से, ओके, सो यू विल गेट 3 10s are 30, 75.5 and this is 4 upon 10, 4 upon 10 is what, it is 0.4, और जब आप ऐड करोगे you will get 75.9, so this is going to be our mean will be 75.9. I hope this is very much clear to you. Okay, now ये हुआ हमारा ये क्वेश्चन with which method, with step deviation method. Now I'm going to take 2 more questions from this exercise. Question number 3 I'm going to take, where you need to find the value of unknown frequency. Question number 3. This is easy question, okay? Question number 3. So 11, 13. I'm not writing, okay? I'm just writing the class interval. Alright, daily pocket allowance it is given, which is 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25. And this is frequency given to you, 7, 6, number of children, okay, here number of children, 7, 6, 9, 13, F, 5 and 4. Okay, this is mean is given to you, mean is given to you what, 18, you just need to find the missing frequency. How would you do it? आपकी मर्जी, आप जैसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहो, है ना,
आपको मीन दिया हुआ है, आपको मीन पता है, एंड वन अननोन वेरिएबल इज देयर विच इज एफ विच यू नीड टू फाइंड। सबसे पहले मीन दिया हुआ है तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मीन। आपकी मर्जी आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हो। यू कैन यूज़ एफ आई एक्स आई डायरेक्ट मेथड कर सकते हो, एफ आई यू आई कर सकते हो, एफ आई डी आई कर सकते हो, वट एवर इट इज, है ना। सो जस्ट लुक हियर नाउ हियर, लेकिन सबसे पहले एक्स आई तो निकालना पड़ेगा विच इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 11 plus 13 divided by 2 कितना होगा। 11 plus 13 is what? It is 24. 24 divided by 2 is going to be what? 12. So ये हो गया हमारा 12. इसको करोगे तो 28 which is 14. Then we have 16. Then we have 18. Okay. Then we have 20. हम xi निकाल रहे हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, 25, 8, 48. Okay. Now मैं डायरेक्ट मेथड यूज कर लूँगी, है ना। और इफ यू विश टू यूज यू कैन यूज अज्यूम मीन मेथड। चलो अज्यूम मीन मेथड यूज कर लेते हैं ना। अज्यूम मीन मेथड में सपोज मैंने ले लिया 18, ए मेरा अज्यूम किया है 18, तो डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए। ना 12 माइनस 18 डायरेक्ट कर रही हूँ, माइनस 6, 14 माइनस 18 माइनस 4, 16 माइनस 18 माइनस 2, 18 माइनस 18 0, 20 minus 18 2, 22 minus 18 is 4, and then 24 minus 18 is 6। ये वैल्यूज मिली हमको, माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 0 2 4 6। ओके, हाँ, अज्यूम मीन मेथड यूज करें। नेक्स्ट फॉर्मूला इज, नेक्स्ट क्या होता है स्टेप, एफ आई डी आई। 7 इंटू माइनस 6 माइनस 42, 6 इंटू माइनस 4 माइनस 28, 9 इंटू माइनस 2 माइनस 18, 13 इंटू 0 0, f इंटू 2 is 2f, 5 into 4 20, and then 6 4s are 24। स्टेप डन। अब हमको मीन दिया हुआ है, मीन कैसे निकालते थे, सिग्मा एफ आई डी आई, आई एम राइटिंग इट हियर, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और 8 प्लस किया करते थे, दैट्स हाउ वी फाइंड द मीन। वो मीन हमको ऑलरेडी दिया हुआ है क्लास, दिस मीन इज गिवन टू यू। कितना दिया हुआ है वो मीन, आपको दिया हुआ था मीन 18, सो आई एम गोइंग टू राइट इट 18 हियर। ए की जगह मैंने 18 पुट किया, प्लस की जगह प्लस, सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई मीन्स सम ऑफ दिस कॉलम। ये जब आप सम करोगे व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, आपको सम मिलेगा 2f माइनस 40। दिस सम सिग्मा एफ आई डी आई इज गोइंग टू बी 2f माइनस 40। देखो कैसे कैलकुलेट किया, लाइक टर्म्स को ऐड किया है, 2f अकेला था तो 2f माइनस 40। ओके, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग हाउ, माइनस 42 माइनस 28 माइनस 18 प्लस 2f प्लस 20 और 24 को किया। ओके, सो व्हेन यू विल डू इट यू विल गेट 2f माइनस 40, 2f माइनस 40। ओके, सो ये हमको मिला 2f माइनस 40। सिग्मा एफ आई डी आई इज 2f माइनस 40 अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई फ्रीक्वेंसीज का सम कितना होगा, जस्ट लुक हियर, 7 plus 6 13, 13 plus 13 26, 26 and 9 will be 35, 40 44, 44 plus f। फ्रीक्वेंसीज का सम क्या होगा बच्चों, 44 plus f। ओके, सो फ्रीक्वेंसीज विल बी सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और वी कैन से सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई इज 44 plus f, सिग्मा एफ आई इज 44 प्लस f। हमने कुछ नहीं किया, फॉर्मूले में पुट किया, a की जगह 18 प्लस की जगह प्लस, सिग्मा एफ आई डी आई आपको दिया हुआ है 2f माइनस 40, सिग्मा एफ आई इज 44 प्लस f इज इक्वल्स टू 18। नाउ यू जस्ट नीड टू सॉल्व इट एंड यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f। ये 18 से 18 कैंसिल होगा, प्लस का उधर जाके माइनस होगा, अब आपके पास बचा है 2f माइनस 40 इज इक्वल्स टू, ये 0 बचा है यहाँ पे, तो 44 प्लस f मल्टीप्लाई में जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 0। So 2f is equals to 40 and f is what, 40 upon 2 which is 20। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 20। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू, इसमें कुछ नहीं करना है, जो आप मेथड कर रहे थे वो ही कर रहे हो, बस f को f ही लेके चलना है। तो एफ आई एक्स, जस्ट लुक हियर, एफ आई आप चाहो तो डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो,
DI निकाला हमने, सब में से सब्ट्रैक्ट किया 18 को, हमको ये मिला, देन FI DI 7 into -6 -42, 6 - 4, 6 multiplied with, I'm so sorry, this is 6 multiplied with -4 is -24. Okay, then 9 minus 2 is -18, 13 into 0, F into 2 is 2F, 5 4s are 20, and then 4 6 are 24. When you will just solve this, you will get sigma Fi di, which is equals to 2F minus 40. ओके, फिर हमको दिया हुआ था मीन हमने अज्यूम मीन मेथड से कैलकुलेट किया, तो फॉर्मूला भी वो लगाएंगे, वो हमको 18 दिया हुआ था, ए हमने अज्यूम किया 18 प्लस सिग्मा Fi di is 2F minus 40, सिग्मा Fi फ्रीक्वेंसीज का सम 44 प्लस F, ये हमको 18 दिया हुआ था, 18 से 18 कैंसिल हुआ, यहाँ 0, ये 44 प्लस F डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 0 से, यू विल गेट 0, सो 2F minus 40 equals to 0, 2F is equals to 40 and F will be equals to 40 upon 2. All right, so now question